Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So IBPS has released a supplementary notification for RRB 9 clerk and officer. Now, in this notification, they have made things very clear that the additional applications are invited from two categories. One, those will become eligible by way of qualification as at 9/11/2020. That means there may be certain candidates whose qualification is completing by 9th of November 2020. Second, who could not register between 1st July 2020 to 21st July 2020. Now they can register from 26th October to 9th November 2020. Now they have also announced the date of examination that Scale 1 Pre will be held on 31st December 2020 and Office Assistant, that is Clerk, Pre will be held on 2nd January 2021 or 4th January 2021 or both days. It has also made clear existing candidates, those have already registered, need not apply under this. So what is the implication of this? So this window is open only for these two categories. It is not re-exam. That means the candidates, those have already appeared in the examination, they need not appear again. Second, there is no chance for the candidate, those have already missed it, to appear in this examination. So this exam will be open to whom? Who are eligible on account of qualification as at 9th November 2020, and the candidates, those have not registered in the earlier notification period, that is 1st July 2020 to 21st July 2020. So what is the implication of this? The implication is that the result will only come after the conclusion of this phase of pre-examination. So no chance of result in November or December. This point is very clear. So now result can be only expected in the month of January 2021. And if result is coming in January 2021, that means main exams may happen in late January 2021 or February 2021. Now another thing is whether vacancies can increase. This is a question. Yes, vacancies can increase because normally process is completed by 31st December. Now they are extending process for a next calendar year. That means RRBs will be at liberty to add more vacancies in the notification. And if that happens, then the sadness that is coming to the existing candidates will go away. So I feel if they are coming out with this process, there will be addition of vacancies and there will be addition of candidates, and if adequate number of vacancies are added and the number of new candidates are not too large, it will be a good thing for the existing candidates. That is what I feel. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. IBPS ने RRB की सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन जारी कर दी है. जैसा कि कल के वीडियो में भी मैंने क्लियर किया था कि ये कोई री एग्जाम वाली लैंग्वेज नहीं लग रही है. ये लैंग्वेज लग रही है कुछ और लोगों को मौका देने की. तो अब उन्होंने क्लियर किया कि कौन लोग एलिजिबल होंगे. वो लोग जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 9 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगी. दूसरा, वो सभी लोग जो 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 के दौरान अप्लाई नहीं कर पाए, तो इन लोगों को एक मौका मिल रहा है कि वो अप्लाई कर सकते हैं. और जो रजिस्ट्रेशन है वो 26 अक्टूबर से शुरू होकर 9 नवंबर तक चलेगी.
तो जो ये कैंडिडेट अप्लाई करेंगे इनके लिए जो प्री की डेट है स्केल 1 की होगी 31 दिसंबर 2020 और ऑफिस असिस्टेंट की होगी 2 जनवरी 2021 और 4 जनवरी 2021। यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनको दोबारा अप्लाई नहीं करना है और ना ही उनको एग्जाम दोबारा देना है। ये बड़ा क्लियर हो गया है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि जो एग्जाम नहीं दे पाए उनको मौका दे रहे हैं, ऐसा इस एडवर्टीजमेंट में कहीं नहीं है। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है? पहला इम्प्लीकेशन तो क्लियर हो गया कि नवंबर दिसंबर में आपका प्री का रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि जब अभी प्री कंप्लीट ही नहीं हुआ और प्री कंप्लीट होगा 4 जनवरी को जाके, तो इससे बड़ा स्पष्ट हो गया कि जो सस्पेंस था रिजल्ट का और क्यों पोस्टपोन हुआ था वो बिल्कुल क्लियर हो गया अब कि आपका रिजल्ट नवंबर दिसंबर में नहीं आ रहा। ये आपको एडिशनल पीरियड मिल गया है तैयारी करने का। दूसरी इम्प्लीकेशन क्या है कि रिजल्ट जनवरी 2021 में आएगा इसका मतलब, और मेन के एग्जाम हमारे जनवरी एंड या फरवरी में हो सकते हैं। तीसरा इम्प्लीकेशन क्या है? तीसरा इम्प्लीकेशन क्या है कि जो आरआरबीज है वो कैलेंडर ईयर अडॉप्ट करते हैं। अब क्योंकि ये सिलेक्शन नेक्स्ट कैलेंडर ईयर तक चली गई तो नई वैकेंसीज भी इसमें ऐड हो सकती है। आल्दो इसमें नहीं बताया गया, पर जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि वैकेंसी जरूर बढ़ेंगी इसके अंदर। अब क्योंकि एक तरफ वैकेंसीज बढ़ेंगी और एक तरफ कुछ कैंडिडेट बढ़ेंगे, तो यदि ज़्यादा कैंडिडेट ना बढ़े और वैकेंसी अच्छी बढ़ गई तो जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दे दिया था उनके लिए ये खुशखबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये इफ एंड बट है। मेरा मानना ये है कि यदि ऐसा हुआ, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी बैंक अपनी प्रोसेस में हैं वैकेंसीज डिसाइड करने के, तो वो वैकेंसीज इसमें ऐड होने की संभावना है क्योंकि अब डिलेड है प्रोसेस डिलेड है। तो इस दौरान जो लोग रिटायर होंगे या रिज़ाइन करेंगे वो वैकेंसीज भी उनको पता लग गई और वो बैंक चाहें तो इसी सिलेक्शन से ले सकते हैं, क्योंकि उनको फरवरी मार्च से पहले तो ये लोग मिल नहीं रहे हैं। तो वो इसके अंदर इस सिलेक्शन का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहेंगे और वैकेंसी बढ़ाएंगे। तो इसलिए जो लोग काफ़ी चिंतित हो रहे हैं ये नया मौका दे दिया, हमारे साथ अन्याय हो गया, मुझे नहीं लग रहा ये अन्याय है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है प्री का, उनके लिए ये एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए आप इन 2 महीने में लग के मेंस की तैयारी करो और इधर उधर की खबरों से सावधान रहो। जो बात मैं बताता हूँ अपने चैनल में उसमें तत्व होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, और मैंने 3 बातें आपको बता दी हैं। इसमें वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे, तो जो लोग प्री में बैठने में कामयाब हो गए उनको मौका बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ये मेरा मानना है। और हमेशा जो मैं बताता हूँ वो सच ही निकलता है। तो अपनी तैयारी करो। अभी आपका नवंबर दिसंबर में कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब है रिज़ल्ट जनवरी में आएगा, तो आपके पास जनवरी आखिर में या फरवरी पहले हफ्ते में ये एग्ज़ाम होंगे। आपको ईश्वर ने ये 3 महीने का जो टाइम दे दिया है, 2 महीने का जो टाइम दे दिया है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाओ, अच्छी तैयारी करो। गॉड ब्लेस यू ऑल।